तो टाइप्स ऑफ टेबल होता है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेबल. स्नोफ्लैक सपोर्ट थ्री टाइप्स ऑफ टेबल: परमानेंट, ट्रांजिएंट एंड टेम्पोररी टेबल, राइट? So there are three different scenario use cases of these three tables, right? So permanent table by default table type in a Snowflake. These are the regular and common tables, right? And table exists until we drop them explicitly, right? Time time travel retention period is 0 to 90 days. What is retention period, guys? Means time travel means, I already mentioned, it's a historical time travel allow us to get the data from history, right? Suppose if you have run any query, right? So we have yesterday we have seen that, right? Query ID is generated, right? Query ID is generated whenever we are running any query, anytime, just like a select star from a table. 10 times you will run the 10 times query ID is going to be generated, right? So suppose any means any means human error or something happen, any disaster happen, something happen, and by mistakenly we have lost the data. We have dropped the table. It's happening some many where you have heard about that. Any employee by mistakenly means drop the table, drop the database itself only. One of my means colleague dropped the table. It's in database only, right? Complete database he had dropped it. So in that scenario, what we can do, we as Snowflake give a very good means features, that is time travel, right? So time travel means so allow us, it's a time travel work on retention period. Retention period means time travel work on retention period is between 0 to 90 days in enterprise and higher edition, right? We have seen that there are three types of edition, four types, right? Four types. So that is a enterprise means a standard enterprise, and business critical, and one more is there, BPS, right? Virtual private environment. So for the enterprise edition means time travel period is 0 to 90 days, right? So it's mentioned there, right? 0 to 90 depend upon the means edition. So time travel retention period 0 to 90 days for permanent table. So suppose if you have dropped any table, then it will be, we can get the table data or table till 90 days, right? And 7 days of fail safe period. What is fail safe? Once the retention period is over, सपोज एक बार हमने डेटा को डिलीट कर दिया, ठीक है, किसी टेबल को ड्रॉप कर दिया, तो हम तो डायरेक्टली 0 to 90 डेज में टिल 90 डेज तक उस टेबल को हम ला सकते हैं, चाहे उस क्वेरी को ला सकते हैं, कोई भी क्वेरी हम रन किए, सपोज करो हम कोई भी क्वेरी रन किए और हमारा डेटा सब आ गया, उस समय पता चला बाद में कि हमको सेम क्वेरी रन करना है, तो उस क्वेरी को भी हम ला सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिटेंशन पीरियड बाय अप्लाइंग द टाइम ट्रेवल, राइट? तो उसके बेसिस पे हम देखें कि मतलब 70 डेज हो गया, 90 डेज हो गया, उसके बाद एक्स्ट्रा 7 डेज स्नोफ्लैक गिव अस टाइम टू गेट द डेटा, राइट? 7 डेज एक्स्ट्रा टाइम देता है स्नोफ्लैक, दैट इज a fail safe. ओके, दैट इज a fail safe पीरियड. फेल सेफ क्या होता है? फेल सेफ में क्या होता है? देर इज अ सिमिलर काइंड ऑफ, यू कैन ऑल्सो गेट द डेटा इन द सेम 7 डेज till 7 days. Once 90 days plus 7 days, you have a means you have a you are able to access the data, you are able to get the data. तो उसमें क्या होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? टाइम ट्रेवल में क्या होता है, यू कैन डायरेक्टली गेट द डेटा, क्वेरी रन करो, यू विल गेट द डेटा, राइट? बट 7 डेज उस फेल से पीरियड में होता है, उसको तुम्हें स्नोफ्लैक सपोर्ट को, ठीक है, स्नोफ्लैक के सपोर्ट को तुम्हें मैसेज करना पड़ेगा, उसको सपोर्ट को ईमेल करना पड़ेगा, देन दे विल गेट द डेटा ऑन बिहाफ ऑफ यू एंड देन दे विल शेयर टू यू, राइट? तो ये होता है फेलशिप में. तो मतलब कहने का मतलब इंटरप्राइज एडिशन में 97 डेज टोटल डेटा हमारे पास सेफ है, 90 + 7 डेज. गॉट इट? गॉट द डिफरेंस?
टाइम ट्रेवल में, और ये अलग से हम चैप्टर है टाइम ट्रेवल एंड फेल से, बट स्टिल मीन्स एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। और इसका सर ये हम्म ऐसा कोई फीचर शायद कहीं और नहीं है ना, कि सीक्वल सर्वर नहीं नहीं, या ऐसा फिर ऐसा नहीं, ओरेकल में नहीं 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 है? नहीं नहीं, यहाँ कहीं नहीं है, ठीक है, ये कहीं नहीं है। सिंटैक्स टू क्रिएट परमानेंट टेबल, राइट, कैसे करते हैं? क्रिएट टेबल, टेबल नेम, जस्ट परमानेंट टेबल। इसमें जो नॉर्मल टेबल हम बनाते हैं वैसे ही परमानेंट, नॉर्मल टेबल को परमानेंट टेबल ही बोलते हैं, जिसमें कुछ नहीं लिखते हैं, राइट। नॉर्मल टेबल को परमानेंट टेबल ही बोलते हैं, जैसे क्रिएट टेबल, टेबल नेम, वो परमानेंट टेबल हो गया, ठीक है। नाउ ट्रांजिएंट टेबल, ये कुछ नहीं है, सेम टेबल है, वो नॉर्मल परमानेंट टेबल कहलाता है। ट्रांजिएंट मीन्स टेबल में थोड़ा डिफरेंस है, यू विल सी हियर। इट्स अ सिमिलर टू परमानेंट टेबल ओनली, बट वन डे रिटेंशन पीरियड। तो इसमें क्या होता है, उसमें जो तुम्हारा इस टेबल में क्या होगा कि एक दिन का रिटेंशन पीरियड होगा। अगर तुमने टेबल को ड्रॉप कर दिया, मीन्स हमने टेबल को ड्रॉप कर दिया, सो हम एक ही दिन तक डेटा को ला सकते हैं, इसके बाद नहीं होगा हमारे पास। और इसमें नो फेल सेफ पीरियड, सो ओनली 7 डेज, 1 डेज डेटा वी कैन हैव। हम गलती से डिलीट कर दिए टेबल को, तो बस यही डिफरेंस होता है। आ, ये भी टेबल होता है, टेबल एग्जिस्ट अंटिल वी ड्रॉप एक्सप्लिसिटली, इसको जब तक हम ड्रॉप नहीं करेंगे तब नहीं होगा। इसमें ये क्यों करते हैं? वेन एवर वी डोंट रिक्वायर डेटा प्रोटेक्शन, राइट। डेटा प्रोटेक्शन जब नहीं रिक्वायर्ड होता है, तो उस सिनेरियो में हम वी आर क्रिएटिंग दिस टेबल, राइट। उस सिनेरियो में हम इस टेबल को क्रिएट करते हैं। जब सर सॉरी। प्रोटेक्शन जरूरी ना हो, हाँ, जब जैसे कोई मैं डेवलपमेंट कर रहे हैं कुछ डेटा भी की। हाँ, उसमें डेटा प्रोटेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं है हमें, तो उस सिनेरियो में हम उसको इस टेबल का क्रिएट करते हैं। ऐसे जनरली हम लोग ट्रांजिएंट तो नहीं करते हैं, टेम्प्रोरी टेबल को ये करते हैं। और ये क्योंकि सारे टेबल टेबल इसलिए होता है, जैसे कि सपोज करो हमने कोई क्रिएट टेबल किया, ठीक है, तो ये तो स्टोरेज लेगा ना, इट विल क्रिएट टेक द स्टोरेज, राइट, इट विल स्टोर द डेटा, इट विल टेक द, it will allocate the space in the database, right? And we know yesterday we have learned it, means once we are storing anything, Snowflake charge on the monthly basis, right? So transient table is also, there is no much difference in this on transient and permanent, but here the difference is creating the syntax, create transient table, table name, right? So you have to use the keyword transient, create transient table, table name, right? So you have to create it in this way, okay. Now temporary table, so temporary tables, table exist only within the session, right? So this, so temporary table, table exists only within the session, okay. Say ye table is a very useful, this temporary table is very useful, while if you are quite mature user in a Snowflake, in that scenario we are using the temporary table. संतोष आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। Hello, hello, now it's fine. स्क्रीन पे स्टक हो गया। अभी Hello, थोड़ा नेटवर्क का इशू है। हाँ हाँ अभी सुनाई दे रहा है। हाँ ये मतलब, स्क्रीन स्टक हो गई क्या? स्क्रीन परमानेंट टेबल में ही है, मतलब स्लाइड। okay, okay, let me check, let me rejoin it.
हेलो। आ रही है सर आवाज। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके। ठीक है। फाइन। So temporary table is very useful in development types of work, right? जब हम मेच्योर यूजर हो जाते हैं स्नोफ्लैक का, तो हम इसको यूज करते हैं। जो टेम्प्रोरी टेबल यूज करता है, दैट इज अ वेरी मेच्योर मीन्स डेवलपर, मेच्योर यूजर ऑफ द स्नोफ्लैक, राइट? क्यों करते हैं? कि इट टेबल एग्जिस्ट ओनली विद इन द सेशन, राइट? हम कुछ भी सेशन, अगर जब तक हमारा स्नोफ्लैक का सेशन ऑन रहता है तभी तक होता है। वेयर हाउस हमारा क्लोज, मीन्स वेयर हाउस कब क्लोज होता है, राइट? स्नो किसी का लॉगिन है क्या स्नोफ्लैक में? एनीवन? यस सर। Can you share your screen? And all are accessing the Snowflake account or not? हेलो। हाँ हेलो। संतोष, रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है और मैं रखा हूँ। तो मैं ना रिकॉर्डिंग देख लूंगी। हाँ, अभी मेरे को कुछ काम है तो मैं थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ। ओके सही है। ठीक है। ओके, इट्स लोडिंग। यस सर। हम्म आ, इधर नीचे आना, नीचे मीन्स लेफ्ट साइड, लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट डाउन, एक एक पे क्लिक करना, एक एक पे। हाँ उस पे, उसके ऊपर, नीचे, उसके नीचे, नीचे नीचे। हम्म नीचे उसके बाद, हाँ वेयर हाउस है ना, वेयर हाउस पे क्लिक करना। सो देखो यहाँ पे हमारा वेयर हाउस है, ठीक है? तो हमारे जो भी कॉस्ट होता है, इट्स डायरेक्टली एसोसिएटेड ऑल द कंप्यूट वर्क वॉट एवर वी आर डूइंग, that is chargeable, right? And it's depend upon the, this depend upon the means our which size of warehouses and how many cluster, means whether we are a single cluster, whether you are using a multiple cluster, it depend upon that it's charged, right? So इस पर जब यहाँ पे कोई किसी पे क्लिक करना, वेयर हाउस पे किसी पे ऊपर वाला में, हाँ इधर है ना, थ्री डॉट, थ्री डॉट राइट एक्सट्रीम, थ्री डॉट, एडिट, एडिट, क्लिक ऑन दैट, सी। सो यहाँ पे क्या होता है, इफ यू सी द, इट्स अ फीचर्स इज कॉल्ड हेयर इज अ नेम। अब देखो यहाँ पे एक चीज गाइज, मैंने स्टार्टिंग के, अगर तुमने वीडियो देखा होगा तो तुमने पढ़ा होगा कि देयर टू टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, राइट? टाइप्स, राइट?
सो टाइप्स में क्लिक करोगे तो वन इज अ स्टैंडर्ड, वन इज अ स्नो पार्क ऑप्टिमाइज, and definition is also there, right? It's already written. So definition standard, normally हम standard ही यूज करते हैं. It's a enable to do, it's a capable to work, do all types of work, right? But snow park optimized जो warehouse होता है, type होता है, that is a only used for the DML, only used for the just like a machine learning types of thing. Okay, so whenever we are using any machine learning model types of work, in that scenario we require snowpark optimized. This is a little bit costly, where we are using the large memory and the cache, so that in that purpose, in that scenario we are using snowpark optimized, right? Again हमने पढ़ा था साइजेज, राइट? साइजेज में पढ़ा था, हम क्लिक ऑन दैट. सो इफ विल सी एक्स्ट्रा स्मॉल टू 6L तक होता है, ठीक है. यहाँ इफ विल सी 1 क्रेडिट पर आवर, स्मॉल 2 क्रेडिट पर आवर, मीडियम 4 क्रेडिट पर आवर, लार्ज 8 क्रेडिट पर आवर एंड एक्स्ट्रा लार्ज 16 क्रेडिट पर आवर. इस तरह से 6L तक जाता है. अब तुमको अगर स्नोफ्लैक का ये करना है, ठीक है, अगर तुमको कंज्यूम करवाना है तो 1 घंटा सिर्फ वेयरहाउस को विदाउट ये किए हुए छोड़ दोगे तो रन कर जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा. 512 इधर 400 दिए ना, 400 क्रेडिट दिए, खत्म हो जाएंगे. तो इतने स्पीड हो जाएंगे. सोचो वन स्मॉल हम लोग यूज कर रहे हैं, अभी एक्स्ट्रा स्मॉल यूज कर रहे हैं, तो कितने स्पीड है. अगर तुम मीडियम कर लोगे, 6L तक कर लोगे तो कितना स्पीड होगा, ठीक है. उसके बाद, ठीक है, उसके बाद मेरा तो नॉर्मली कंपनी में स्टैंडर्ड टाइप ही यूज करते हैं, राइट? मतलब सब जगह कंपनी सब जगह, हर जगह, हर जगह, अच्छा. ठीक है, ठीक. यहाँ और पे साइज क्या रहता है, वो भी वेरी करता है, एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम, लार्ज? ऑफकोर्स एक्स्ट्रा स्मॉल बहुत ये हो जाता है, डिपेंड अपॉन द यूज, कितना यूज है नहीं है उसके साइज हाँ पे हाँ. करते हैं. तो जनरली हम लोग मीडियम में अच्छा काम करते हैं, ठीक है. हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में मीडियम में काम अच्छा, करते हैं, ठीक है. अच्छा, ठीक. नेक्स्ट इज ऑटो रिज्यूम एंड ऑटो सस्पेंड, राइट? ऑटो, यहाँ फीचर्स देखोगे, ऑटो रिज्यूम एंड ऑटो सस्पेंड. ये क्या करता है, स्नोफ्लैक जैसे ही क्वेरी इंटर करोगे ऑटोमेटिकली रिज्यूम कर देगा, मतलब इसका वेयरहाउस को, ठीक है. क्योंकि वेयरहाउस ही चाहिए, इट इज ड्राइवर ऑफ द स्नोफ्लैक, राइट? वॉट एवर द क्वेरी यू आर रनिंग, so without warehouse it's not going to work. So whenever we are inserting a query, writing the query and keeping into the space editor in same way time and hitting the click button, run button, that time automatically it's started. That's a auto resume, right? सो अगर इसको हमने ऑटो रिज्यूम एंड ऑटो सस्पेंड हटा देंगे तो मैनुअली हमको जाके उसको रिज्यूम करना पड़ेगा एंड मैनुअली जाके पॉज करना पड़ेगा, ठीक है. अच्छा, ऑटो सस्पेंड कब होना चाहिए? 10 मिनट आफ्टर एक्टिव. अब 10 मिनट तक तुम्हारा वेयर हाउस रन कर रहा है, 10 मिनट तक वेट करेगा तुम्हारा. अगर क्वेरी रन पिंग नहीं गया, क्वेरी नहीं गया, ये तुम्हारा ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेटेड, राइट? ऑटो सस्पेंड हो जाएगा. तो ट्रांजिएंट क्वेरी में टेबल में क्या होता है, जब हमारा वेयर हाउस क्लोज हो गया, ठीक है, जैसे ही क्लोज हुआ वो टेबल में से डिलीटेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वो टेबल रहेगा ही नहीं, ठीक है. तो ये चीज़ यहाँ पे मैं इसको समझाने के लिए यहाँ पे ये किया था, ठीक है. गॉट इट? अच्छा, जैसे कि अच्छा ट्राई, जैसे हमें परमानेंट टेबल तो स्टोर रहेगी, मगर जैसे ही वेयर हाउस सस्पेंड होगा तो ट्रांजिएंट टेबल रिमूव हो जाएगी. हाँ, परमानेंट में कोई चेंजेस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा जब तक हम और इवेंट टेम्परेरी जैसे कोई सेशन के हिसाब से, सेशन के साथ. नहीं, टेम्पोररी सेशन के हिसाब से टेम्पोररी भी रहेंगे, ठीक है.
बस जैसे कि दो। कोई प्रोसीजर की बॉडी है तो उसके अंदर अंदर रहेगी, जब प्रोसीजर पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद वो हट जाएगी। नहीं नहीं, टेम्पोरी में और परमानेंट में बस एक ही डिफरेंस है, ओनली रिटेंशन पीरियड की। एक दिन का रिटेंशन पीरियड मिलता है हमको टेम्पोरी में। अच्छा, टेम्परेरी में भी डिटेंशन पीरियड मिलता है और हमें ट्रांजिएंट में भी। नहीं नहीं नहीं, तुम यू गॉट कंफ्यूज राइट नाउ, मीन्स आई एम शोइंग यू अगेन। आई एम टेलिंग परमानेंट जो टेबल होता है, रिटेंशन पीरियड मीन्स टाइम ट्रेवल means the retention period is 0 to 90 days in a permanent table, right? अब time travel I already mentioned you what is time travel. Time travel is a means a snowflake feature which allow you to means access the data or access the get out the data if you have deleted it also, right? Till 90 days, 0 to 90 days in a means as per the your addition of snowflake. नहीं समझ में आया? मतलब समझ गया। हाँ, ये सब में सर ट्रांजिएंट और टेम्परेरी जो है कि ट्रांजिएंट हमने क्योंकि बाकी डेटाबेसेस है जैसे सीक्वल, ओरेकल, सीक्वल सर्वर, उसमें क्या होता है कि ट्रांजिएंट टेबल नहीं होती, परमानेंट होती है, टेम्परेरी होती है। हाँ। तो तो यहाँ हमने नहीं, ये यहाँ ट्रांजिएंट यहाँ टेबल यूज क्यों की? हम बता रहा हूँ। हम बता रहे हैं यहाँ पे, पहले तो परमानेंट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज परमानेंट टेबल, व्हाट इज टेम्पोररी टेबल, ठीक है? दोनों सेम टेबल है, परमानेंट और टेम्पोररी, ठीक है? दोनों को जब तक डिलीट नहीं करोगे तब तक ड्रॉप नहीं होगा, मतलब ड्रॉप नहीं होगा। जब तक ड्रॉप नहीं करोगे, मतलब ड्रॉप करने का मतलब क्वेरी नहीं चलाओगे तब तक ड्रॉप नहीं होगा। समझ रहे हो? तो दोनों टेबल। Difference, what is difference here? Difference is one features is a very unique feature of Snowflake is a time travel, right? Time travel allow you to access the deleted data as well. Okay, till means, so what is the means in between 0 to 90 days in enterprise edition, right? Time travel 0 to 90 days in enterprise edition एंड 7 days फेल सेफ पीरियड। तो मैंने समझाया फेल सेफ क्या है। फेल सेफ इज ऑल्सो आफ्टर 90 days, वंस द 90 days इज ओवर, सपोज हमने कोई डेटा को डिलीट कर दिया, चाहे किसी एम्प्लॉय ने गलती से डिलीट कर दिया, बाद में पता चला कि हमारा डेटा है ही नहीं। अब हमें डेटा गलती से डिलीट हुआ, हमको पता नहीं, अब यूज करना चाहते तो कैसे करेंगे? टाइम ट्रेवल का क्वेरी चलाएंगे और वहां हम ये डेटा को ले आएंगे। वो क्वेरी तब तक वैलिड है जब तक 90 डेज है, ठीक है? रिटेन इंटरप्राइज में तुम कितने दिन का लिए हो रिटेंशन पीरियड, इट टोटली डिपेंड अपॉन अप टू यू, बिकॉज रिटेंशन पीरियड इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द कॉस्ट, राइट? ये भी वैरी करता है कॉस्ट पे, तुम्हारा प्राइसिंग पे, ठीक है? 0 टू अगर एक दिन कोई लेते हैं तो उसको कुछ कम लगते हैं, 90 डेज तो लोगे तो ओके। मतलब थोड़ा ज़्यादा लगेंगे, तो लगेंगे तुम्हारे, तो होता है। और उसके बाद तुम्हें फेल ओके। सेप मिलते हैं 7 days का। तो फेल सेप में क्या होता है? फेल सेप में होता है कि you again extra 7 days you are able to access the data, but thing is that with the you directly don't, you are unable to access the data directly from your side. You have to reach out to the Snowflake support team to get the data. That is only difference. आया समझ में? फेल सेप में और टाइम यस सर। ट्रेवल में, राइट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड यस सर। द डिफरेंस बिटवीन permanent table and temporary table. Permanent table says it's a normal table only, but we it's exist into the Snowflake or database until we don't until we don't drop it, right? जब तक हम अपने साइड से ड्रॉप नहीं करते तब तक वो डेटा बेस में रहता है, ठीक है? ओके,
next is temporary table. Yeah, temporary table is also same way. It's a here temporary keywords is added only, and it's a similar to the permanent table only. And this table is also exist until we don't drop it, right? जब तक हम ड्रॉप नहीं करते हैं अपने साइड से तब तक नहीं ड्रॉप होता है. There is only one difference. Okay. Only one difference is what? Here you are able to, you have a facility to of retention period 0 to 90 days in a permanent table, but in a temporary table you have only 1 day retention period. ओके, देयर इज ओनली 1 डे. तुमने गलती से डेटा को डिलीट कर दिया, अगर एक दिन में तुमने एक्सेस नहीं किया तो वो डेटा गायब हो गया. ठीक है, एक दिन बीत जाने के बाद तुम डेटा को ला नहीं सकते. ठीक है, ये डिफरेंस है. दूसरा डिफरेंस क्या है, इसमें 90 डेज के बाद फेल सेफ तुमको 7 डेज का मिलता है, बट इन टेम्पोररी टेबल यू डोंट हैव दिस फैसिलिटी. गॉट इट? बाकी बाकी सब ठीक Sir. चीज है. ओके, नाउ oh god, sorry, it's a very blunder I have did it. It's a transient table, means Sushant. Yes. Yes, Okay. sir. uh, यही मैं सोच रहा था. हाँ, मैं मतलब पूरा कंफ्यूज कर दिया तुम्हें भी और मैं खुद हो रहा था. परमानेंट टेबल एंड ट्रांजिएंट टेबल. ठीक है, ओके, सॉरी सॉरी. हाँ, okay. So here 1 day retention period, no fail safe. टेम्पोररी टेबल क्यों बनाते हैं? टेम्पोररी टेबल एग्जिस्ट विद इन ओनली द सेशन. टेम्पोररी टेबल नाम ही टेम्पोररी. ठीक है, once the session end table get dropped completely and it's not recoverable. Okay, they are not Yes, sir. visible to the other user on the or session. वो दूसरे किसी यूजर को दिखता नहीं है, मीन्स अदर यूजर्स और सेशन. ठीक है, ये नहीं दिखता है, Yes, इस टेबल को यूज नहीं कर सकता है. एंड 1 डे रिटेंशन पीरियड, एक दिन का यहाँ भी तुम्हें रिटेंशन पीरियड मिलता है, बट हेयर ऑल्सो नो फेल सेफ पीरियड. ठीक है, यूजफुल फॉर द okay. डेवलपमेंट वर्क. सपोज करो कुछ काम कर रहे हैं, हमको डेवलपमेंट काम कर रहे हैं, कुछ भी डेवलप कर रहे हैं. ठीक है, उसमें बहुत सारे टेबल्स बनाने होते हैं गाइज. मीन्स अगर डेवलपमेंट कुछ करोगे बहुत सारी टेस्टिंग करने पड़ते हैं, बहुत सारे मतलब छोटे छोटे चीज करने होते हैं. अच्छा, इसका तो मैंने खूब यूज किया. हाँ, तो अगर इसको यूज करोगे तो इसमें कोई डेटा स्टोर नहीं होता है, इसलिए इसका कोई पैसा भी नहीं लगता इस टेबल के लिए. ठीक है, तो इसको अपना एंजॉय करो, इस टेबल को बनाओ, यूज करो, कुछ भी चार्जर नहीं है इसमें. इसका बस क्रिएट टेम्पोररी टेबल, टेबल नेम करो, बस इतना करो, बस बात खत्म. ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है. अब तुम फंक्शनैलिटी हम परमानेंट, अब हमने अभी तक हमने बहुत सारा टेबल क्रिएट किया. ओनली फॉर व्हाट? ओनली फॉर द लर्निंग पर्पस, राइट? वी हैव लर्न इट, राइट, एज ऑफ नाउ, but there is no use as of now. We are not using anything. But if as of now we are taking the free classes, free means free means storage everything by the Snowflake for the trial account. That's why otherwise if you have to pay, if you have to pay the amount for that storing the data and means doing the practice and all, in that scenario what we would do, we have to use temporary table, right? So since we are means working in, we are learning here, I mean the trial account, we are getting sufficient amount of credit to use it. Otherwise we can also utilize the temporary table, right? So ये चीज है. I'm now points to remember. We can't convert any table to any type of table to other type. अब परमानेंट को, एक टेबल को किसी दूसरे टाइप टेबल में कन्वर्ट नहीं कर सकते. जैसे होते हैं ना अल्टर, होते हैं अल्टर कीवर्ड करके हम कन्वर्ट करते हैं, तो वो कभी नहीं कर सकते. ठीक है, we can create a transient database and transient schema as well, right? We can create transient table database and transient schema as well, right?
tables created under transient database or schema are by default transient, right? Table created under the transient database or schema by default database. तो schema क्या होता है? टेबल के सबसे बड़ा क्या होता है? हायरार्की लेवल में क्या होता है? सबसे बड़ा डेटाबेस होता है। डेटाबेस के अंदर क्या होता है? स्कीमा होता है। यस सर, स्कीमा के अंदर क्या होता है? टेबल होता है। स्कीमा, टेबल्स होते हैं, राइट? बहुत टेबल। सारे टेबल्स होते हैं। तो बोलते हैं कि अगर ट्रांजिएंट टेबल के अंदर, ट्रांजिएंट स्कीमा के अंदर और या इधर ट्रांजिएंट डेटाबेस के अंदर कुछ भी क्रिएट करते हो वो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिएंट ही होता है, ठीक है? टेबल ही बनेगा, चाहे गॉट इट? ट्रांजिएंट हम सर टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस। स्कीमा भी क्रिएट कर सकते हैं, ओके। ओके? जैसे हमने बनाया यहाँ पे ट्रांजिएंट का, क्रिएट टेबल, ट्रांजिएंट टेबल, टेबल नेम, क्रिएट ट्रांजिएंट। अच्छा, इसको क्यों हम मतलब लेते हैं, ट्रांजिएंट टेबल क्यों बनाते हैं? ट्रांजिएंट टेबल का भी सिनेरियो है, देखो यहाँ है क्या, मतलब हमको जब डेटा, नॉर्मल डेटा कोई होता है, क्योंकि इसमें भी इसको कम कॉस्ट लगते हैं एज कम्पेयर टू द मीन्स परमानेंट टेबल, बिकॉज रिटेंशन पीरियड हमको यहाँ पे 1 डे का मिलता है, लेकिन उधर 0 to 90 डेज का मिलता है, लेकिन साथ साथ में हमें अगर पेमेंट भी ज़्यादा करनी होती है इसके लिए, ठीक है, परमानेंट टेबल के लिए। तो हम अगर ट्रांजिएंट टेबल का यूज करें, जो कि अगर कोई चीज को डिफाइन, यहाँ बोल रहा है ना, डिफाइनिंग स्टेज टेबल एज ए ट्रांजिएंट बेस्ट प्रैक्टिस, अगर कुछ डेवलपमेंट वर्क कर रहे हैं और स्टेजिंग टेबल, स्टेजिंग टेबल हमने पढ़ा है ना, जहाँ के हम रखते हैं डेटाबेस को, मतलब हम स्टेज टेबल पढ़े हैं कि अगर मतलब हम किसी फाइल को ला के कॉपी करते हैं तो उस समय स्टेज टेबल पर स्टेज में डालते हैं, उसके बाद करते हैं, तो उसमें उस सिनेरियो में हम ये कर रहे हैं, ठीक है? ओके। ओके। Now, point to remember, right? So we can't convert any type of table to other type because we don't have we are unable to do it. We can create transient database सर on. आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है सर। Oh God, वो कब से नहीं कर रहा हूँ, बहुत देर से क्या? हाँ सर, हाँ, बहुत मेरी देर शेयर से। ठीक है, कोई नहीं, आप ये स्लाइड ही शेयर कर दीजिएगा, हम लोग पढ़ हाँ लेंगे। हाँ पर नहीं सर, आपकी रिकॉर्डिंग में तो होगी। हाँ हाँ, मेरी रिकॉर्डिंग में नहीं। है रिकॉर्ड है। आपकी रिकॉर्डिंग हाँ में हाँ रहेगी सर हाँ की। हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं फिर भी ये दे दूंगा पीपीटी, ठीक है? तो ये है यस सर। no fail-safe period, useful for the development work and can be used to store procedure or intermediate data storing, right? अब देखो, point to remember, we can't convert any type of table to other type. We can create transient database and transient schema as well. I already mentioned. Table created under transient database or schema are by default transient only, right? Okay. And we can create a temporary table with the same name as a permanent table, right? हम अगर टेम्पोररी टेबल बना सकते हैं सेम एज ए परमानेंट और ट्रांजिएंट टेबल, अगर हम एम्प्लॉय बनाए हैं, ठीक है, तो हम ट्रांजिएंट टेम्पोररी एम्प्लॉय भी बना सकते हैं सेम नेम, ऐसे अलाउ नहीं करता है। सेम नेम से। हाँ, सेम नेम से, बट तुम उसको उसके पहले ओके। क्या लगाना होगा, टेम्पोररी कीवर्ड्स लगाने होंगे, ठीक है, ओके। हम्म। राइट? हम्म। तो ये सिंटैक्स है ना टेम्पोररी टेबल का, क्रिएट टेम्पोररी टेबल, टेबल नेम, ओके। सर जैसे कि हमने एक सेम नाम से बना सकते हैं हम, कि हाँ परमानेंट टेबल भी हाँ हो। हाँ हाँ तो सर जैसे कि सर हम प्रोसीजर में हमने बनाया, हम हाँ उसको कॉल किया तो पता कैसे चलेगा कि कौन सी टेबल है, ये ट्रांजिएंट है? कोई कीवर्ड है क्या कुछ? हाँ, तो टेम्पोररी लिखोगे ना तुम इसमें। जैसे सिलेक्ट क्वेरी चलाएंगे सर, हाँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, एक काम तो करो, उसमें कैसे तुम पता एक चलेगा? एक काम करो, अभी मैंने से देखो कोई चीज को मतलब अगर करते हैं ना, तो तुम ये बनाओ जल्दी से, एक टेबल ठीक बना है सर। लो।
टेबल का नाम डालो कुछ, मतलब तब ना पता चलेगा। टेम्पोरी मीन्स टेबल, सिर्फ टेम्पोरी डालो मीन्स उसको टेम्पोरी टेबल नेम नहीं होगा, है ना। टेम्पोरी डालो, हाँ। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मीन्स टेम्पोरी टेबल भी होगा, ठीक है। टेबल टेबल, हाँ हाँ टेबल, हम मतलब अलग बोल रहे थे उसको। यस सर। पेन क्या? यस सर, एक हाँ बना लेता हूँ सर परमानेंट। हाँ हाँ, एक बना लो परमानेंट। भी हो गई। अच्छा, कहाँ बना है वो, ये तो देख लो मतलब। ये सर अंशु डीबी के अंदर, अंशु कोई डीबी के अंदर आया था। ये तो उसी में होगा। ये इसमें बना दिया सर, अच्छा ठीक है। इसमें बना दिया। ठीक है, तो इसको भी इधर बनाओ, फिर तुमने पता चलेगा। ना रन, रिफ्रेश करके चेक करो हाउ इट्स लुक्स लाइक। इधर लेफ्ट में, लेफ्ट में कहाँ पे है? मैं इसको एम्प्लॉय। तो ये सर ये तो एक परमानेंट है ही कि एम्प्लॉय, कौन सा दिख रहा है, अच्छा, टेम्पररी या परमानेंट? हाँ, तो ये चीज, इस चीज को ना, मतलब इसको, मतलब अभी देखो माई डीबी के अंदर बना है ना, मतलब ये ट्रांजे कहाँ गया, वो हमारा टेम्पोरी ऊपर में है ना, नाम जो दिया हुआ है। किधर नाम डाले हो? इससे ट्रांजेंट कहाँ? ऊपर है ना, ये एम्प्लॉय, ओके। एक बार और देख क्या नहीं नहीं नहीं, ठीक है, वो तो हो गया। ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मतलब है तो सर। हाँ, नीचे वाला करो, परमानेंट वाला। वो भी नहीं होगा, वो तो है ही ऑलरेडी। परमानेंट वो भी है पहले ही। हम्म बट पता नहीं इसका चल सर रहा है कोई ना कहाँ कीवर्ड है पे। क्या? एट द रेट है क्या? किसका, इसके या लिए? हैश वगैरह कुछ लगाते हैं क्या? शायद इसका हैश होता है। हम्म, ये कैसे पता चलेगा सर अभी जो लेगा ना, ये मतलब इंसर्ट करो, हाँ इस इंसर्ट करो डेटा पहले। टेबल टेबल नेम
वैल्यूज परमानेंट में टेम्परेरी लिखना पड़ेगा। इंसर्ट इनटू टेबल नेम डेटा आएगा ना, लिख इंसर्ट इनटू लिखते हैं ना। इंसर्ट इनटू, ओके हाँ। इंसर्ट हो गया। तो आ गया, ये परमानेंट में गया है, इसके लिए टेम्परेरी है। टेम्परेरी टेबल ऐसा होगा। शायद ये इसमें जाएगा, ठीक है, मतलब परमानेंट में ही जाएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ इसका कौन सा, भूल गया मैं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। हेलो, अच्छा, Yes, yes. 100 टेबल्स करो तो 100 टेबल्स। हम्म, ये परमानेंट ही दिख रही है सर इसमें। टेम्पोररी भी तो दिख रही है। अच्छा, ये टेम्परेरी दिख रही है क्या? सिर्फ बट ये टेम्परेरी दिख रही है माई सर। डीबी के अंदर नहीं है ना। हाँ, ये माईडीबी के अंदर नहीं है सर। नहीं, ये जो हाँ, पहले तुमने किया था अंशु डीबी के अंदर है। तो अगर हम इसका नाम कुछ और रख दें, क्या तो बोलते हैं, एम्प्लॉय 1। नहीं 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 नहीं, ठीक है, वो तो ठीक है, बिकॉज तुम सेलेक्ट किए हुए हो ना, वहां से दिखाएगा 100 टेबल्स, किसको सेलेक्ट करेगा, वो ऊपर में डेटाबेस सेलेक्ट किए हो। माई डीबी का सर, डेटाबेस सेलेक्ट अपना करो, माई डेटाबेस अभी सेलेक्ट करो ना, माई डीबी माई डेटा, डीबी का। हाँ माई डीबी डेटाबेस सेलेक्ट करो, देन यू कैन रन। नहीं, ये सर, सेटिंग के साइड में सर अब ये जो। टेम्परेरी टेबल हो गई, मतलब नाम अलग रखना पड़ेगा हमें टेम्परेरी टेबल में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नाम अलग रखना पड़ेगा, लेकिन वहाँ तुम वो माई डीबी सेलेक्ट करो। नाउ हाँ, से अभी ठीक। 100 टेबल करो आप, ठीक है, 100 टेबल, नाउ 100 टेबल। टेम्परेरी, 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 दो टेम्पररी दिखा रहा है। दोनों टेम्परेरी हैं। तो परमानेंट नहीं लिया यहाँ पे, हम्म। ठीक है। तो ये चीज समझो, मतलब यही होता है, अगर एक नेम यूज करोगे तो दोनों परमानेंट मीन्स नहीं देगा। ओके सर, उस सेशन के लिए वो टेम्परेरी टेबल को ज्यादा हम्म कंसिडर करेगा। मतलब अगर एक सेम नेम होगा तो बाय डिफॉल्ट टेम्पररी लेगा या फिर क्या है, मतलब पहले जिसको क्रिएट करेगा वो, पहले तो हमने टेम्पररी किया था ना, हाँ, उसके बाद उसने परमानेंट किया।
या फिर जो पहले क्रिएट होगा उसी टेबल को लेगा, सेम नाम से अगर ये क्रिएट कर रहे हैं तो? थोड़ा देखना पड़ेगा ये, मतलब हाँ, ठीक ठीक। ठीक है, इसको देख के हम बताते हैं कल, इसको चीज़ को क्लियरफाई करते हैं। ठीक है। ठीक ओके सर। है, इतना ही रखते हैं। कल मतलब हम स्नो पाइप करेंगे थोड़ा, मतलब कॉपी कमांड वगैरह यूज करके रखना। और तुम्हें डे में ओके प्रॉब्लम नहीं है ना क्लासेस के लिए? कल संडे? नहीं। नो सर। नहीं है ना, मैं पूछ लूँगा, ठीक है, 2-3 घंटे, 2 घंटे पहले। नहीं। ठीक है गाइस, और बताना, मतलब देखो, मतलब कभी हो जाता है, कभी कभी लेट हो जाता है, वो हम ऐसे जनरली मैं खुद करता नहीं हूँ लेट, ठीक है, कभी हो जाता है तो ठीक है। मैं मीन्स इसके लिए अब उसको हमेशा मतलब दूसरे टैब से देखना, पैसा पे आ जाना है, क्या मतलब है यार, मतलब कुछ चीज़, ठीक है। तो